can you please just let me know about how much you comfortable with IT things like as a कि आपका क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है? So I know IP addressing and हम्म subnetting. I mean, हम्म subnetting, it's a long time. I mean, I know subnet mask, but slash value, I mean, I don't remember how to calculate the slash value, but usable IP address slash value. hmm, also uh, I know, how to image, any PC, Windows हम्म 10 or Windows 11 using USB, boot. You're talking about the installation, right? Yes, installation. So, Installation of operating Mhm. system. so you are asking me whatever I know you want me to say. Yes, yes. Okay. So Office, and I also have did Google Workspace. And, I mean, I have purchased a domain, and I did the MXTXT record, and uh, so I know how to purchase a basically a domain, and but it's been a long time. And apart from this, hmm, I mean, if you can ask me any questions, I mean, I will be able to tell. In IP address management, do you have idea about the loopback address and NAPIPA IP address? Yes, loopback address means it's a local PC address, and Hmm. a PIPA address means basically when DHCP is unable to supply IPs, so it Hmm. sends a 169 IP address. So I mean, every PC gets 169, so that means DHCP issue. Cool. Yeah. So can we make a connection with the help of PIPA IP address? If multiple machines are available with the PIPA IP address, so can we make a data transaction? Mm, yes, I mean within the local we can able to send the files, and but we will not able to access internet. Hmm. Yeah. ठीक है. And in case of desktop troubleshooting, do you have idea about how to resolve the issues? Uh, uh, I mean, depends what sort of problem we are having. If it Hmm. is a driver issue, or if it is a the blue screen of death, mm, or hard disk issue, printer issue. I know how to resolve all these problems. ठीक है. Cool. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के केस में आज के डेट में जो कंपनीज है ना वो मल्टीपल स्किल्स देखती हैं अपने इंजीनियर्स के अंदर जिसको भी वो हायर करना चाहते हैं ना दे Hmm. नीड अ मल्टीपल स्किल्स इन सिंगल पर्सन and if you really want to like as apply for the system administrator job you Hmm. must need IT to support. know about the concept of like there's multiple things so let me help you to understand क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में Hmm. we are going to So, follow the same content sorry, that you shared. sorry to interrupt you. So is IT support and system administrator job role is the same, or it's different? एग्जैक्टली एग्जैक्टली आईटी सपोर्ट थोड़ा सा लाइक एज अ लो प्रोफाइल है सिस्टम एडमिन थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है Okay. इफ यू हैव आइडिया अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंटेंट तो आईटी सपोर्ट का तो इंटरव्यू आप आसानी से क्रैक कर सकते हो Okay. Okay. And also, how do I, maximize this screen? Because I can see only it's very small. यू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर और एप्लीकेशन Browser. I didn't ठीक है सो download it. Mhm. सो यू नीड टू लाइक हैज इंस्टॉल एप्लीकेशन और उसके बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास से मतलब कल से आप Mhm. यही ऐड करना मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल करना एंड देन यू कैन गेट द फुल स्क्रीन Cool. Cool. but in the recording you will get a kind of full access. Okay. Okay.
basic of networking. Then we are going to discuss about the concept of फिनटेल, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है क्लाइंट प्लस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्लाइंट ओएस प्लस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये दोनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे इन थर्ड मॉड्यूल. फोर्थ मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमएस ऑफिस एंड प्लस ऑन प्रेमाइसेस एक्सचेंज. ऑन प्रेम एक्सचेंज का भी थोड़ा सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि ऑन प्रेमाइसेस एक्सचेंज में आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ वी कैन एस्टैब्लिश द ईमेल सर्विसेज. नंबर फिफ्थ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्यून, है ना. इंट्यून पे एनरोलमेंट कैसा होगा, और एक और पॉइंट हमने ऐड करना है यहाँ पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. These all are the modules we are going to cover in our training. Fine. Today or like or No, 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 no. I'm talking about the in total. the एक दिन में or possible ही नहीं कि नहीं, इतना नहीं. सारा कुछ हो पाए. And also ticketing tools. कनेक्ट वाइज, Connect ऑटोमेट, मैनेज, आप देख लो जो भी चाहिए. कनेक्ट वाइज का मेरे पास लाइसेंस है. कनेक्ट service now. वाइज हो गया, और सर्विस नाउ, है ना. सो इसका मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, और आई विल क्रिएट अ फ्री ट्रायल अकाउंट, डेमो अकाउंट क्रिएट करके टिकटिंग टूल के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि कैसे काम करता है रियल एनवायरनमेंट में, ताकि आप अपने रिज्यूमे पे मेंशन कर सको कि आई हैव आइडिया अबाउट द टिकटिंग टूल एज वेल. हमें टिकटिंग टूल का भी नॉलेज है. और ये ITIL फाउंडेशन. ITIL Foundation, which is not a part of our कोर्स. become system administrator. ITIL जो है वो आपका सेपरेट सर्टिफिकेशन रहेगा. तो मैं ये भी करना चाह रहा हूँ. हाँ, तो वी पहले आर ये जस्ट गोइंग. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग के बाद या फिर हाँ, इसी के बिटवीन पे जैसे हमारी पास क्लासेस होंगी ना, ये कंटेंट के साथ साथ हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. इतना सारा मॉड्यूल है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच अदर. और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, है ना. टाइम यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं, और सबसे पहला जो मॉड्यूल है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद desktop troubleshooting, and maybe they are going to ask you question related to end user computing, है ना. Desktop troubleshooting या end user computing both are similar to each other. Lots of things that we need to know in case of desktop troubleshooting. बहुत सारी चीजें हैं हमारे करने के लिए desktop troubleshooting में. So I'm going to start from the very basic. Let's start from about booting process. ठीक है. We should know about the concept of booting process. What do you think about the booting process? क्या होता है booting process? बेसिकली पीसी जो है कि जो फाइल्स है, इमेज, जो भी है फाइल्स है, वो पहले हार्ड डिस्क में वो जो है ना रहती है, फिर वहां से रैम में जाती है. बट रैम तो एक वॉलेटाइल मेमोरी हो गई, तो उसमें जो है सेव नहीं रहती. कुछ भी फाइल सिर्फ वो प्रोसेस करने के लिए रैम यूज होती है, बट परमानेंटली हार्ड डिस्क में जो है अपने फाइल्स वगैरह यूज होती है, स्टोर होती हैं. आप ठीक है. नहीं मालूम है. ठीक है, no problem. Booting process, this is common and important question that asked by most of interviewer. So we should know about कि how we can manage it, कि कैसे हम इन चीजों को मैनेज करते हैं booting process का. अगर हमें आइडिया है ना, then definitely it will help you to resolve the problem. Resolve the problem in the sense कि आप basic troubleshooting को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके. कि how it can perform the task, ये किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेगा, और कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे to handle this environment. ओके. Let me start from the very basic. Booting process से start करते हैं. So not only the computer system, with every digital devices, जो भी digital devices आपके पास है ना, वो सारी की सारी digital devices booting process को follow करती हैं. Your laptop, your desktop, your smartwatch, smartphone, smart TV, all types of devices, all types of digital devices can help us, can perform the task of booting process. जो भी मशीन को टर्न ऑन करने के बाद टाइम लगता है ना, जो भी आप मशीन को टर्न ऑन किया है, तो जो भी टाइम लगता है इन बैकएंड, उस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है.
उस बैकएंड के टास्क को हम बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं. Mhm. इज दैट क्लियर? Yeah. ठीक है. So booting process contains multiple type of you can say that stage or steps required. एक एग्जांपल के लिए देखते हैं. दिस इज आवर डेस्कटॉप और मे बी लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है. और इस केस में आपको डेस्कटॉप पे दो कीज दिखाई पड़ते हैं, वन स्टार्ट और अनदर इज रीस्टार्ट. लैपटॉप में सॉफ्टवेयर के थ्रू रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट का कोई बटन रहता है, बट स्टार्ट का बटन आपके पास अवेलेबल रहता है. बूटिंग प्रोसेस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर लो आप. बूटिंग प्रोसेस ऑफ विंडोज मशीन कैटेगराइज्ड इन टू डिफरेंट पार्ट, जिसमें से एक है आपका कोल्ड बूटिंग, ठीक है, और दूसरा है अपने पास वार्म बूटिंग. ठीक है. कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप मशीन को स्टार्ट करते हो. तो कोल्ड बूटिंग के अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करता है हमारा कंप्यूटर, और वार्म बूटिंग के अंदर कुछ अदर से स्टेप्स होते हैं. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द गैप. वार्म बूटिंग में 4 स्टेज फॉलो करता है. पहला होता है बायोस, दूसरा होता है एमबीआर, तीसरा होता है एक्टिव पार्टीशन, और लास्ट होता है बीसीडी. ठीक है, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा. वार्म बूटिंग में दो स्टेप होते हैं, बीसीडी होता है और एक्टिव पार्टीशन. स्टार्टिंग के दो ऑप्शन आपके यूज नहीं होते. ठीक है. सो 4 स्टेजेस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वार्म बूट कोल्ड बूटिंग, और 2 स्टेजेस रिक्वायर्ड इन वार्म बूटिंग. कोल्ड बूटिंग में 4 स्टेप्स और वार्म बूटिंग में 2 स्टेप्स हमारी मशीन्स को फॉलो करना होता है. Let's try to understand about the gap between these two different part. When user start machine by pressing, ठीक है, Mm. स्टार्ट बटन. जब भी आप मशीन को स्टार्ट बटन के थ्रू स्टार्ट करते हो, ठीक है, उस केस में योर मशीन विल फॉलो द काइंड ऑफ कोल्ड बूटिंग. जब आप स्टार्ट बटन से प्रेस करके मशीन को स्टार्ट करते हो ना, तो इसमें सारे स्टेप्स जो है पिक्चर में आ जाते हैं. बायोस से स्टार्ट होता है और बीसीडी तक जाता है. ये क्या है? व्हेन यूजर रीस्टार्ट पीसी, देन वार्म बूटिंग कम इनटू द पिक्चर. तब क्या आता है? वार्म बूटिंग आता है आपका पिक्चर में, जिसमें केवल दो स्टेप फॉलो होते हैं. पहला एक्टिव पार्टीशन और दूसरा होता है आपके पास बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा. इज ऑल राइट Mhm. प्लीज? BCD का फुल फॉर्म क्या है? बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा, Boot बीसीडी. con- Okay. ऑल राइट And प्लीज? okay. MBR also. आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप. जो भी Okay. ऑप्शंस यहाँ पे है ना, चार चार Okay. ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं बायोस से. सो उम्मीद है आपको बायोस पता होगा. बायोस क्या करता है? Yeah. व्हाट यू थिंक अबाउट द बायोस? BIOS is it is a operating system of a of of a PC. I mean, basically, all it's a firmware where हाँ जी. it can all जो हार्डवेयर है पीसी के, हम्म. कीबोर्ड हो गया, हम्म. माउस हो गया, उसका पूरा वो एक फर्मवेयर है. उससे हम जो है सेटिंग्स कर सकते हैं. अगर पीसी को, अगर उसमें बूट सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं हम. तो हम्म. एक फर्मवेयर है वो बेसिकली. हम्म. जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके हार्डवेयर पेरिफेरल्स की है, वो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन बाय द बायोस. इज इट? ओके. रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, या कोई कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह लगा रखा है आपने कंप्यूटर से, तो वो सारी इंफॉर्मेशन बायोस अपने पास स्टोर करके रखता है. बायोस के अंदर सेटिंग्स होती है, बायोस के अंदर चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें आप उसमें मैनेज कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द बूटिंग प्रोसेस के अंदर जो आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज numbers. So I'm going to start from the stage 1.
वो है बायोस। पहला जो ऑप्शन है वो है बायोस, which is also considered as a basic input output system। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट Basic आउटपुट input सिस्टम के output. नाम से जानते हैं। ठीक है। और बायोस इज बेसिकली कैटेगराइज्ड इन टू डिफरेंट पार्ट। बायोस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दो आप। एक आपका कंसीडर किया जाता है लेगेसी बायोस और दूसरा होता है यूईएफआई बायोस। लेगेसी बायोस विच इज कंसीडर एज ए ओल्ड बायोस, और दूसरा कंसीडर किया जाता है यूईएफआई जो आपका लेटेस्ट बायोस होता है। नाउ टॉक अबाउट द गैप बिटवीन लेगेसी एंड यूईएफआई। लेगेसी बायोस आपको सिर्फ और सिर्फ सीएलआई का ऑप्शन देगा। पहला, लेगेसी इज टाइप ऑफ ओल्ड बायोस। ये क्या है आपका? ओल्ड बायोस है जो कि सिर्फ सीएलआई पे काम करता है। दूसरा, इट सपोर्ट ओनली एमबीआर डिस्क। ये हमें केवल एमबीआर डिस्क का सपोर्ट करता है। नंबर तीसरा, नो सिक्योर बूटिंग। इसमें आपको सिक्योर बूटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है ना? नो सिक्योर बूटिंग। और यू नीड टू फॉलो मैनुअल अपडेट। आप इसमें मैनुअल अपडेट करेंगे किसका? फर्मवेयर का। Mhm. अगर आप बायोस अपलोड अपडेट करना चाहते हो तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से दैट ऑटोमेटिक अपडेट। ये आपका ऑटोमेटिक अपडेट फॉलो नहीं करता, ऑटोमेटिक अपडेट ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता। इज दैट क्लियर प्लीज? Okay. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज केसेस ऑफ यूईएफआई बायोस। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट द यूईएफआई बायोस। In case of UEFI BIOS, what are the points that we need to keep in our mind? We just need to understand about the concept of कि UEFI BIOS in year of 2008, Intel introduced UEFI BIOS in year of 2008 and 9, and the responsibility of UEFI BIOS can provide us a GUI access. It will provide us a kind of GUI access. ये हमें graphical user interface provide करता है। And the responsibility of GUI कि आप अपने BIOS को ना we can manage with the help of uh, graphical user interface। लेटेस्ट जितने भी सिस्टम आपको मिलेंगे, राइट, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, that give us a option to configure our UEFI BIOS with the help of GUI. Is all right, please? Mm-hmm. Okay. Yes. In each and every Windows based machine contain two different types of BIOS. One is legacy and another is UEFI BIOS. Legacy is a type of old BIOS and UEFI considered as a latest BIOS, right? And huge gap between the legacy and UEFI that we discussed. Legacy can give us access of BIOS in CLI format, means if you want to make any changes with the BIOS, then you can use your keyboard and arrow keys. But the UEFI BIOS can give us a access. It is the latest version of BIOS, plus it will provide us a access of BIOS in the format of GUI, means you can use your keyboard, you Mm-hmm. can use your mouse to make any changes. All right, please. Yeah. Can you, Apart sorry, can from you this, write the steps as well in UFI? up sure. So the gap, the features of UEFI BIOS are, it will provide us a kind of latest BIOS। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे this is the latest BIOS and based on GUI। ये graphical user interface के थ्रू आपको हेल्प करता है। नंबर सेकेंड, it will support both what? MBR plus GPT।
ये MBR और GPT दोनों सर्विसेज को क्या करता है, ये सपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर? Okay. एंड नंबर थर्ड, प्रोवाइड सिक्योर बूटिंग। ये हमें सिक्योर बूटिंग प्रोवाइड करता है। क्या होता है सिक्योर बूटिंग? आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट वन इज ऑटोमेटिक firmware update option available. Firmware update option available means Automatic जब भी update. आप फर्मवेयर को अपडेट करते हो ना, तो उसमें आपको मैनुअली कोई स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ता। बायोस के अंदर एक फीचर होता है, आपका सिस्टम बस इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। इफ योर मशीन इज कनेक्टेड विद इंटरनेट, देन वी आर एबल टू अपडेट योर बायोस ऑटोमेटिकली। इज दैट Mhm. क्लियर प्लीज? Clear. And ठीक है, या yeah, why do we update BIOS? I mean, okay, why we need to update the BIOS? Like, yes. so basically what happens, sometime the application that you are trying to install on your computer, right? आप कोई Mm-hmm. एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो अपने मशीन में, और वो लेटेस्ट वर्जन का एप्लीकेशन है, फर्मवेयर उसको समझ नहीं पा रहा है, लाइक फर्मवेयर इज नॉट एबल टू रजिस्टर योर एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्री, तब वो Mm-hmm. आपको एरर देगा, यू हैव टू अपडेट द फर्मवेयर, दैट टाइम यू नीड टू अपडेट इट। अब मोस्टली Mm-hmm. होता है जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो आपको एरर देता है और बोलता है प्रॉपर तरीके से कि प्लीज ट्राई टू अपलोड योर बायोस, है ना। वो आपका फर्मवेयर अपडेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि भाई आप अपना बायोस अपडेट करो, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद लाइक एज अ नेक्स्ट स्टेप। आप देन फिर आप अपने अगले स्टेप पे क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ठीक है, Okay. ये प्रैक्टिकल भी करेंगे हम? हाँ जी, हाँ जी, पूरा स्टेप है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्रैक्टिकल में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, राइट? यू विल गेट Okay. द एक्सेस, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और Mm-hmm. उसके बाद फिर हमें ये होना चाहिए। चलो अगले Okay. पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, पहला ऑप्शन तो क्लियर है, इसमें प्रैक्टिकल की नीड नहीं है। Mm-hmm. नहीं, जो थोड़ा लेगेसी और बायोस के लेगेसी के जो थोड़े बहुत स्टेप्स जो यानी कि हाँ हाँ आ रहे हैं, उसी पार्ट पे आ रहे हैं। वर्चुअल मशीन पे अपने पास वर्चुअल मशीन है, उसका बायोस ओके ओपन करेंगे और उसकी सेटिंग्स देखेंगे ना, क्या क्या ऑप्शंस ओके दिखाई पड़ते ओके हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है, पहले इनको थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है कि इट सपोर्ट ओनली एमबीआर डिस्क, और ये एमबीआर और जीपीटी डिस्क दोनों को सपोर्ट करता है। एनी इनपुट अबाउट द एमबीआर एंड जीपीटी डिस्क? नो एमबीआर डिस्क जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमबीआर डिस्क जो है वो बेसिकली ओल्ड मेथड है डिस्क को मैनेज करने के लिए, और जीपीटी इज लेटेस्ट मेथड टू लाइक क्रिएट पार्टीशन। इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू सेट अप अ लेटेस्ट डिस्क स्टोरेज। क्लियर डिस्क स्टोरेज है ना? चलिए बात करते हैं इसमें। एमबीआर की मैक्सिमम पार्टीशन साइज जो है ना, मैक्स पार्टीशन साइज एक हार्ड डिस्क में अगर आपको पार्टीशन करना है ना, तो आप 2 TB से ज्यादा पार्टीशन नहीं बना पाओगे। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। और अगर आप प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो 4 प्राइमरी पार्टीशन को ये सपोर्ट करेगा केवल। और अगर जीपीटी की बात करें तो मैक्स पार्टीशन साइज जो होगा वो होगा 256 TB। और जो प्राइमरी पार्टीशन साइज है ना, ये लोकल डिस्क जो होती है ना अंदर पीसी के, वही है ये? हाँ हम दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। इसमें हम्म, 128 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। 128 प्राइमरी पार्टीशन बनाएगा आपका जीपीटी वाला डिस्क। और अगर हम्म, आपने हार्ड डिस्क को सिर्फ एमबीआर में रखा तो वो कितने पार्टीशन बना पाएगा? सिर्फ 2 TB के 4 प्राइमरी क्या? पार्टीशन बना पाएगा। ठीक है, हम्म, तो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन अचीव दिस टास्क। सो बहुत ही सिंपल सा स्टेप हमें यूज करना है।
I'm going to take RDP of our virtual machine, या फिर हमारे पास एक बेस मशीन हमने क्रिएट कर रखा है, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है, जो आपको बायोस की भी सेटिंग्स बता देगा, और यू कैन यूज इट फॉर लाइक टू क्रिएट अ पार्टीशन इन MBR एंड GPT. MBR और GPT का भी पार्टीशन ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना. So these options are available in our MBR and GPT. Let me take the RDP. It is in progress. ये मैंने एक विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को VM बना रखा है, VMware वर्कस्टेशन के, जिसका हमने RDP एक्सेस किया है. और इसमें आपको कुछ नहीं करना, you just need to open disk management, रन टाइप करेंगे, रन ओपन करेंगे और टाइप करेंगे disk mgmt.msc. ये आपको रीडायरेक्ट करेगा पेज ऑफ डिस्क मैनेजमेंट. एंड इन आवर डिस्क मैनेजमेंट आपको एक हार्ड डिस्क दिखाई पड़ रही है, जो कि बिल्ट इन हार्ड डिस्क है. जब हमने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था ना, सो दैट टाइम आई यूज्ड दिस हार्ड ड्राइव, है ना. ये मैंने हार्ड डिस्क उसी टाइम पे लगाई थी. अब अगर अगले स्टेप की बात करें हम, राइट, अगर हम अगले स्टेप की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट द MBR एंड GPT. इसमें एक हार्ड डिस्क हम जोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि वर्चुअल मशीन है तो हम कहीं कितनी भी हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं. ऐड डिस्क पे गए और ऐड डिस्क पे जाने के बाद एक let me add one hard disk with 4 TB. ठीक है, ये वर्चुअल हार्ड डिस्क हमने अटैच करने की कोशिश की है अप टू 4 TB. एक हार्ड डिस्क आपके पास जुड़ चुकी है, राइट. एक आपको ब्लैक हार्ड डिस्क दिखाई, ब्लैंक डिस्क दिखाई पड़ रही है, जिसकी कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 4 TB, है ना. सो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि अगर आपकी MBR डिस्क है तो आप कितनी पार्टीशन बना सकते हैं, 2 TB, और अगर आपके पास GPT डिस्क है तो 128. 128. नहीं, मैक्सिमम साइज ऑफ हार्ड ड्राइव. 4, I think. Maximum size Maximum of max MBR, GPT and MBR. 128, 128, नहीं, 2 नंबर ऑफ TB. पार्टीशन नहीं, नंबर ऑफ पार्टीशन नहीं, नंबर ऑफ साइज ऑफ पार्टीशन. Size of partition for MBR is 2 TB, ओके. and for GPT it's I forgot actually. It's 128 TB or 4 TB. ओके, ठीक है. तो अभी हम इस हार्ड डिस्क को लाइव करते हैं. राइट क्लिक किया, ऑनलाइन करोगे ना, तो आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट करेगा. जस्ट नीड टू राइट क्लिक हियर, इनिशियलाइज डिस्क. दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से? MBR and GPT. GPT MBR is 4 master TB. boot record. MBR is Master boot record. Okay. मास्टर बूट रिकेट. और दूसरा GPT है. GPT क्या है? GUID partition table. GUID पार्टीशन टेबल, है ना. दूसरा GUID. है अपने पास GUID पार्टीशन टेबल. और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों में थोड़ा सा गैप है, ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू सर्विसेज. मैं यहाँ पे ना MBR सेलेक्ट करता हूँ जानबूझ के, टू आइडेंटिफाई कि हम कितना पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे. हमने डिस्कस किया कि 2 TB से ज्यादा आप पार्टीशन नहीं कर पाओगे. इज दैट करेक्ट? Yes. सो इस सिचुएशन में आप देखिए, आपकी हार्ड डिस्क ना पहले से ही डिवाइड हो गई. आपकी जो हार्ड डिस्क है ना, वो पहले से डिवाइड हो गई 2 पार्ट में. तो कि आप ये कुछ भी अनएलोकेटेड, ये 2048 फिर एक है 1952 एक है. आपने जैसा ही MBR पे सेलेक्ट किया, ये 2 पार्टीशंस क्रिएट हो गए.
हाँ जी बिल्कुल। तो 4 TB है उसकी, हम्म 2 TB है आई थिंक MBR की मैक्सिमम स्टोरेज। हाँ, मतलब उससे ज्यादा आपको पार्टीशन करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ पार्टीशंस तो हम MBR पे पार्टीशंस कितने, 2 4 कर सकते हैं शायद ना? नहीं, पार्टीशन इज अ सेपरेट पार्ट। पहले तो मैक्सिमम साइज की बात कर देते हैं, और जो हम्म, पार्ट 4 पार्टीशन बनाओगे ना, वो उसी 2 TB के अंदर होनी चाहिए। क्लियर? okay। तो जितने पार्टीशंस कुल बनेंगे उतनी टू टू नहीं नहीं टू नहीं 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 टीबी का। नहीं, टोटल मैक्सिमम साइज है 2 TB। उस ओके 2 TB के अंदर आप 4 पार्टीशन बना पाओगे। कितने ओके, पार्टीशन? 4 पार्टीशन। कुल। बट मैक्सिमम साइज कितना होगा? आप 500 टू जीबी बनाओ, 400 जीबी बनाओ, 200 जीबी बनाओ, बट उस 2 TB के अंदर ही आपको क्रिएट करना है। ओके। तो अब ये दो जो है यहाँ सामने आपने MBR पे सेलेक्ट किया, तो ये 2 TB है, दो भी 2 पार्टीशंस हाँ, डिस्क ये वन। ना, ये आप पार्टीशन जब क्रिएट करोगे, अब हम पार्टीशन बना रहे हैं, सिंपल वॉल्यूम बना रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और ये आपका पार्टीशन बन गया। ओके। अब तो अब देखिए, ये 2 बाकी TB का है। स्पेस जो है ना, ब्लैंक स्पेस है। हम्म, बाकी ये का जो स्पेस अनएलोकेटेड है। आपका आ रहा है, वो अनलोकेटेड है। आप इस पे राइट क्लिक करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। अब देखिए, ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहा है। ओके। जो ग्रे डॉट है वो अभी एलोकेट नहीं हुआ वो बेसिकली, नहीं, अभी वो है। होगा भी नहीं ना, क्योंकि आपने MBR सेलेक्ट किया है। हाँ। और अगर आपने MBR का स्पेस सेलेक्ट किया ना, तो डेफिनेटली यू आर नॉट ऑथराइज टू create partition with capacity of more than 2 TB। हम्म। तो अब ये 2 TB एलोकेट हो गई यहाँ पर ऑलरेडी, ये आपका allocate हो गई, हो क्योंकि गई है। MBR है, और ये आपका हाँ। अनयूज है, इसका कोई तो यूसेज नहीं है। अब उसको राइट क्लिक मारे तो भी कुछ ऑप्शंस नहीं आएंगे वहाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि MBR आपने पहले से बता दिया कि आपकी हार्ड पर। डिस्क जो है, उसका फॉर्मेट आप MBR रखना चाहते हैं। नहीं मैं स्टार्टिंग में इनिशियली क्यों कंफ्यूज हुआ बोल, तो 2 TB बोले आप MBR में, तो टोटल साइज। 2048। हाँ टोटल साइज तो 2048 तो यही हो गया, फिर 1952 दो पार्टीशंस क्रिएट है, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हुआ। नहीं नहीं, ये MBR पार्टीशन है, अनलोकेटेड है ना, यहाँ पे डेटा तो अनएलोकेटेड। जाएगा नहीं ना। सही है। ओके। अगर क्लाइंट कहता है नहीं, मुझे 2 TB से ज्यादा का पार्टीशन चाहिए, तो GPT पे आना पड़ेगा। आपको GPT में कन्वर्ट करेंगे, देन यू आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ ऑल 4 TB ऑफ स्पेस। तब आप आपके पास 4 TB का स्पेस आएगा। हम्म। तो अब MBR और GPT, तो MBR अगर रहेगा तो उसको PC अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर उसमें ही हम कर सकते हैं? एक बार पार्टीशन बन गया है, तो वो GPT में नहीं कन्वर्ट होगा, आपको डिलीट हम्म, करना पड़ेगा पार्टीशन। ऐसा। है ना? कुछ सॉफ्टवेयर है जो नहीं। ये दावा करते हैं कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट योर ड्राइव, बट वो ना सिर्फ 60% ही लाइक एज अ रिस्पॉन्स करते हैं, कि वो भी डेटा की सिक्योरिटी या सेफ्टी पे जिम्मेदारी नहीं रखते। ओके। ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और ये हो गया पार्टीशन। आप इसमें 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। डिलीट करने के बाद अब हम इसको जीपीटी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें हम किसको कन्वर्ट करेंगे? जीपीटी में। राइट क्लिक करो डिस्क पे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको जीपीटी में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जी इज जी। दैट करेक्ट? करेक्ट। और जीपीटी में कन्वर्ट करने के बाद आप पूरा स्पेस यूज कर पाओगे। मैक्सिमम साइज कितनी है जीपीटी के केस में? 4 TB है, 4 TB। जीपीटी में मैक्सिमम पार्टीशन साइज हाउ मच इज 128 128? तो पार्टीशन पार्टीशंस नंबर्स हो गए, होते हैं। नंबर्स नहीं, हो वो गए। नंबर्स हो गए ना, कि इतने जी नंबर ऑफ पार्टीशन आप तैयार कर पाओगे। जी। साइज की बात कर रहे हैं, कितना साइज का पार्टीशन क्रिएट कर पाओगे? 4 TB है सर, वो याद नहीं है मुझे। 2 TB तो MBR का है। यहाँ पे देखो, इसका अब बताओ। 256 TB है, है ना 256। बहुत सारा स्पेस? बहुत है बहुत। तो हमारे पास तो टोटल 4 TB का स्पेस है।
और हम आई थिंक इसको इस्तेमाल कर ही पाएंगे. डेफिनेटली. राइट क्लिक, पार्टीशन. इज दैट क्लियर? ये आपका थोड़ा पूरा हार्ड डिस्क इस्तेमाल हो गया. जी, ये कौन से सिनेरियोज में हम करते हैं ये जीपीटी और एमबीआर यूज? जब आपके पास लार्ज इन्वायरमेंट है, शेयर स्टोरेज ओके. है, वीएमवेयर का इन्वायरमेंट है ना, हाइपर वी का इन्वायरमेंट है, और कई सारे लार्ज स्पेस इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, उस केस में आप अपनी हार्ड डिस्क को हमेशा जीपीटी में रखोगे. क्योंकि क्लाइंट कभी भी बोल सकता है कि आपने जो हार्ड डिस्क हमारे साथ प्रोवाइड की थी, शेयर की थी ना, वो थी 2 TB की, कैन यू प्लीज मेक इट 5 TB, कैन यू प्लीज मेक इट 10 TB. वो कभी भी रिप्लेस करने की बात करेगा, कभी भी रिप्लेस बढ़ाने की बात करेगा. ठीक है. ओके. तो अब सीधा आगे इस कन्वर्ट सिचुएशन, करना है हमें. हाँ, उस इस केस में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो अब इस सिचुएशन में वी जस्ट नीड टू प्रोसीड. हेलो. यस. सो नाउ राइट क्लिक करते हैं इस डिस्क पे, गो टू द प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में आप देखो वॉल्यूम के ऑप्शन में जब जाओगे ना, तो ये आपको डिटेल बताएगा कि एमबीआर है, जीपीटी है. तो जीपीटी हमें रखनी है. लेटेस्ट में हर एक कंपनी, हर एक कंप्यूटर को मोस्टली जीपीटी का ही एक्सेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि जीपीटी के केस में क्या होता है कि यू कैन मैनेज द इन्वायरमेंट. ठीक है यहाँ तक? So we need to put our hard disk in GPT format, और आप एक 256 TB तक का पार्टीशन यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, अगर आपकी हार्ड डिस्क का फॉर्मेट क्या है, जीपीटी में है. ठीक है ना? अगर आपके डिस्क का फॉर्मेट जीपीटी है तो आप 256 TB तक आराम से बढ़ा सकते हो अपनी स्पेस को. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. ओके. ठीक है. अब रियल टाइम में यूसेज कहाँ पे होगा? ठीक है. कंपनी में आपको हार्डवेयर भी मैनेज करना पड़ेगा, कंपनी में आपको वर्चुअल मशीन्स को भी मैनेज करने की जिम्मेदारी मिलेगी. अगर कोई क्लाइंट की वीएम को आप हैंडल कर रहे हो, और क्लाइंट के वीएम में एक हार्ड डिस्क आपको दिखाई पड़ रही है, और वो लगभग 1.5 TB 1.5 TB के आसपास है, या 2 TB के आसपास है, और वो लगभग ऑलमोस्ट फुल है, ऑलमोस्ट फुल है. फुल है. सो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, कैन यू प्लीज मेक इट 4 TB, कैन यू प्लीज मेक इट 6 TB और 7 TB, है ना? So in this case, you need to change your disk format. ओके. ठीक है. तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? एमबीआर डिस्क होने की वजह से, राइट, एमबीआर डिस्क होने की वजह से आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कितना दिखाई पड़ रही है? 2 TB अभी दिखाई पड़ रही है, और आप उसको बढ़ा नहीं पा रहे हो. ओनली द रीजन ऑफ आपकी डिस्क जो है वो एमबीआर में है. आप पहले एमबीआर को जीपीटी में बदलो, और उसके बाद उसमें स्पेस प्रोवाइड करो. आप पहले उसको एमबीआर में चेंज करो, फिर उसको आप जीपीटी में, सॉरी, जीपीटी में कन्वर्ट करो. जीपीटी में कन्वर्ट करने के बाद यू आर गोइंग टू मेक अ चेंजेस. ओके. बढ़ सकते हैं आगे. जी. ये थोड़ा स्टेप्स बताइए कन्वर्ट करने का फिर से एक बार. राइट क्लिक ऑन आवर डिस्क, जहाँ पे डिस्क दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे कन्वर्ट टू द एमबीआर ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम जीपीटी में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये एमबीआर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है.
तो वापस ऐसे MBR लेके आना तो नहीं है? MBR लाने के लिए आपको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट इसमें नहीं होगा। आपको CMD ओपन करनी है। हम्म, CMD ओपन करने के बाद we just need to execute the command of disk part। ये आ गया disk part। एग्जीक्यूट करेंगे लिस्ट डिस्क, लिस्ट स्पेस डिस्क। कितनी हार्ड डिस्क दिखाई पड़ रही है? 2 हार्ड डिस्क है। डिस्क 0 है 120 GB की, और डिस्क 1 है कितनी कैपेसिटी की? 4000 GB, मतलब वही 4 TB के आसपास। हमें कौन सी डिस्क का सिलेक्शन करना है? हमें सिलेक्शन करना है सेकंड हार्ड डिस्क। तो एग्जीक्यूट द कमांड सेलेक्ट डिस्क, विच वन? डिस्क 1। अब डिस्क 1 सेलेक्ट हो चुकी है। अब आप की जो डिस्क है ना, वो किस में है? MBR GPT में थी, आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेलेक्टेड डिस्क MBR में करना है। अब आप कन्वर्ट लिखेंगे किस में? MBR। हम्म, ओके। अच्छा नहीं, पार्टीशन है ना, पार्टीशन में कहाँ कन्वर्ट कर पाओगे? आप इस पार्टीशन को पहले रिमूव करो, हम इसको डिलीट करेंगे और एक ओके बार फिर से वही कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है? ओके CMD डिस्क पार्ट लिस्ट डिस्क सेलेक्ट डिस्क, विच वन? 1 वाली सेलेक्ट किया वन। हमने। अब आप लिखो कन्वर्ट स्पेस MBR। हो गई? ओके मतलब आपकी हार्ड डिस्क बिना पार्टीशन के होनी चाहिए, उसमें कोई पार्टीशन नहीं क्रिएट होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। अगर हमने कोई पार्टीशन उसमें नहीं तैयार किया, तभी हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। इज दैट ओके प्लीज? ओके अब आप देखो, ये फिर से उसी कंडीशन में आ गई, MBR वाली कंडीशन में आ गई ना। ओके। ये जो बाजू 19 है ये इसका कोई यूज ये नहीं है, आप इसको यूज कोई भी नहीं कर पाओगे अब। ये ऑटोमेटिक आती है वो, या फिर ऐसे बता दिया जि, आपने अभी? जितनी हमने जितनी कैपेसिटी है ना, हम्म, जितनी कैपेसिटी है MBR की, हम्म, वो कैपेसिटी केवल आपकी हाईलाइट होगी। ओके, और जो नहीं है वो ग्रे आउट है। वो ग्रेड आउट हो जाएगी। नहीं, बस ये पूछना है 19 जो है, अगर यहाँ तो कैपेसिटी में बता रहा है उसका टू, जो है ना 20 समथिंग, 2 TB वो तो है, बट ये जो 19 है ये बस ऐसे ही है क्या ये? नहीं ऐसे नहीं, टोटल 4000 आपने यूज किया था ना, 4000 GB। हम्म, तो 4000 GB का मतलब है नॉट 2 TB, नॉट 4 TB, क्योंकि एक टीबी में 1024 होता है, हम्म, 1 GB। 1024 होता है ना। हम्म, हाँ, 1 TB में 1024 GB होती है। ओके और हमने 4000 पूरा दिया था, तो 24 GB सब में जो है कम है। ओके तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें कि कुछ हो पाए, राइट? ओके ऑल राइट प्लीज। ओके। दैट इज वाई ना ये 192 दिखाई पड़ रहा है। हम्म, कैन बी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? यस यस यस। अब हम थोड़ा सा बायोस के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज माय वर्चुअल मशीन, और इसको मैं करता हूँ टर्न ऑफ, ताकि बायोस दिखा सके। लेट मी शट डाउन। और हमें इसका बायोस ओपन करना है, और ये लेगेसी बायोस की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके
अभी जो हम बायोस की सेटिंग करेंगे ना वो लेगेसी बायोस होगा, ओके यूएफआई हम सेपरेटली बात करेंगे। ओके राइट क्लिक किया और फर्मवेयर, फर्मवेयर ही बायोस है। हाँ? ओके ये आपको बायोस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज आवर बायोस सेटिंग। मैं देखा हूँ सबके, अब मेरे लैपटॉप का बायोस थोड़ा अलग है, इसका ये अलग बता रहा हर एक मॉडल का अलग रहेगा, हर एक मॉडल का बायोस अलग है। रहेगा। जी जितने भी मॉडल का बायोस आप इस्तेमाल करेंगे ना वो कहीं ना कुछ उसमें चेंजेस हम्म, होंगे। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। जैसे कि यहाँ पे बायोस की बात करें तो पहला विंडोज बूट मैनेजर, ये वो स्पेस है जो आपके हार्ड डिस्क में रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करता है और बूट कराने की कोशिश करता है आपके कंप्यूटर की, कि आपको विंडोज का विजार्ड दिखाई पड़ सके। आपको हम्म, विंडोज का विजार्ड यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। क्लियर। जी दूसरा, ये डीवीडी डिस्क दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, साटा सीडी रोम, तो वर्चुअली है तो कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये है आपका पाथ रिलेटेड टू द निक कार्ड। सो इसमें कम ही ऑप्शन है। इंटर सेटअप में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको और भी ऑप्शन दिखाई पड़ता है, विच इज बूट कॉन्फ़िगरेशन। हम्म, बूट कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन आप देखिए, जब आप सिस्टम को बूट कराते हो ना तो ये या तो सीडी से होगा, पेन ड्राइव से होगा, या तो आप नेटवर्क से बूट करते हो, राइट। ये 3-4 ऑप्शन हमें दिखाई पड़ते हैं टू बूट आवर मशीन फ्रॉम सीडी डीवीडी, या फिर आप अपने इससे इस्तेमाल करोगे। इज दैट करेक्ट? ओके ओके। तो इसमें अलग है ऑप्शन, इसलिए इसमें अलग दिख रहा है थोड़ा, मेरे पास जो है उसमें अलग है। बस हमें समझना है कि किधर कौन सी चीज़ है। सेटिंग्स हम सबके ना, अलग अलग है। हाँ सेटिंग सबके अलग अलग रहेंगे। हम्म, जी ओके, कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? जी यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का है, तो डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है नहीं अपने पास वर्चुअल मशीन में, तो इस वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये वर्चुअल मशीन का बायोस है, आपके बेस मशीन का बायोस अलग होगा। क्योंकि अभी हम एक्सेस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जैसे ही हम रिस्टार्ट करेंगे ना, बायोस कब ओपन होगा? जब आप मशीन को स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में, और हम हम्म, स्टार्ट करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए आई नीड टू टर्न ऑन माय मोबाइल कैमरा, और मोबाइल कैमरे से मैं आपको वो शेयर करेंगे। ठीक है? फिर से रिपीट करिए, सॉरी मैं सुनना। नहीं, अभी अगर मैं अपने बेस मशीन का जो डेस्कटॉप का आरडीपी एक्सेस किया है मैंने, हम्म, उस डेस्कटॉप का अगर मैं बायोस ओपन करने जाता हूँ तो मशीन हमारी रीस्टार्ट हो जाएगी डेफिनेटली ना, और हाँ, हमारा जो रिमोट है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया डेफिनेटली। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? आप मोबाइल यूज करो। मोबाइल का कैमरा यूज करके आपको दिखाएंगे कि ये ऑप्शन है, इसका आप इस्तेमाल करोगे। हम्म, क्लियर? ओके चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे। बायोस, अभी भी हम बायोस पे हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया कि लेगेसी बायोस, यूएफआई में पहला डिफरेंस, यूएफआई और लेगेसी बायोस में दूसरा डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बात आती है सिक्योर बूटिंग और नॉन सिक्योर बूटिंग। लेगेसी बायोस आपको सिक्योरिटी नहीं देता जब आप मशीन को बूट करते हो। मतलब अगर कोई अटैकर हैकर अपनी पेन ड्राइव लगा करके आपके सिस्टम में वायरस डालना चाहे, तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान वो वायरस एग्जीक्यूट कर सकता है लेगेसी बायोस में। लेगेसी में। यूईएफआई बायोस में, यूईएफआई बायोस में क्या होता है कि आप का सिक्योर बूटिंग होता है। अगर कोई अटैकर इतना स्मार्ट है कि भाई मशीन को ऑन होते ही उसमें वायरस एग्जीक्यूट कर दे, सो दैट टाइम ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब भी कोई बंदा पेन ड्राइव लगाएगा या नेटवर्क केबल लगाएगा या और कोई सेटिंग्स करेगा ना, उसी समय पे, उसी इमीडिएटली वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर लेगा, और जो भी पेन ड्राइव के अंदर वायरस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा वो इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर देगा। ओके ऑल गुड प्लीज। यस लास्ट ऑप्शन है मैनुअल अपडेट और ऑटोमेटिक अपडेट। दोनों में डिफरेंस है मैनुअल अपडेट और ऑटोमेटिक अपडेट में। मैनुअल अपडेट क्या करता है आपका, कि आप सॉफ्टवेयर
को डाउनलोड करोगे, जिस भी कंपनी का आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो ना, उसका मदरबोर्ड आप चेक करोगे कि मदरबोर्ड का लाइक एज अ साइज क्या है। मदरबोर्ड का साइज इन द सेंस लाइक एज अ मदरबोर्ड की कंपनी क्या है, उस मदरबोर्ड की कंपनी के अंदर, राइट, उस मदरबोर्ड की कंपनी के अंदर सॉरी उस मदरबोर्ड की कंपनी के पोर्टल पे जाएंगे। पोर्टल पे जाने के बाद, राइट, पोर्टल पे जाने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, वहां पे डाउनलोड करोगे फर्मवेयर फॉर योर कंप्यूटर। फर्मवेयर अपलोड करने के बाद उसको मैन्युअली इंस्टॉल करोगे, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, ये मोस्ट यूज मदरबोर्ड्स क्या होते हैं, कौन से हैं मोस्टली जो कंपनीज जो यूज करती हैं? इसका आइडिया नहीं है मुझे। क्या मदरबोर्ड? जी जी, मदरबोर्ड मोस्ट यूज। मोस्टली जो कंपनी है ना, जो ब्रांड है, वो वो इंटेल इस्तेमाल करती है। इंटेल। ओके। इंटेल 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 का मदरबोर्ड यूज होता है, क्योंकि सबसे जो ज्यादा ट्रस्टेड माना जाता है ना, वो इंटेल का बोर्ड ही माना जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड होता है। ऑलराइट प्लीज। ओके। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप पे। ये चारों स्टेप क्लियर हैं आपके? तो आप ये बोल रहे थे कि वेबसाइट पर जाके मदरबोर्ड की वहां पर मदरबोर्ड की, हाँ, नहीं, अब कंपनी की सिनेरियोस में क्या मैं कर सकता हूँ ये? कंपनी में तो वो इस्तेमाल करते हैं ना, यूएफआई इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो कंपनी में आपको कोई मदरबोर्ड की साइट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। बायोस ओपन करेंगे, बायोस में एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, अपडेट योर फर्मवेयर और अपडेट योर बायोस। उस पर क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होगा और इमीडिएटली वो जो डाउनलोडेबल फाइल रहेगी फर्मवेयर से रिलेटेड, राइट, ओके। जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, वो अपने आप वहां से क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा। तो जैसा ही नॉर्मल अपन विंडोज के लिए अपडेट करते हैं, सेम वैसे ही बायोस में जाके अपडेट करना बोल रहा है, हाँ जी यूएफआई को बिल्कुल, और मैनुअल में? करेक्ट यूएफआई करेक्ट में करेक्ट, ऑटोमेटिक हो जाता है? सॉरी, ऑटोमेटिक हो जाता है, लेगेसी में आपको मैनुअल करना पड़ता है। मैनुअल करना पड़ता है। ठीक है। और ये एक जो बता रहे थे आप वेबसाइट पर जाके, वो मैंने समझा नहीं उसका। आप लेगेसी बायोस यूज कर रहे हो, ओल्ड बायोस यूज कर रहे हो, और आपको क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड द बायोस फर्मवेयर अपडेट। ओके, तो वेबसाइट पे वो उसका नाम चेक करके वहां जाके डाउनलोड करना है? हाँ, ओके। आप पहले डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद यू आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, है ना। तो ये चलो कंपनीज मैं, के सिनेरियोज में भी करना पड़ता है या फिर जस्ट होम कंपनी तो सिनेरियोज में? यूएफआई बायोस यूज करती है ना, कंपनी तो यूएफआई बायोस यूज करती है। गलती से ओके। आपको लेगेसी बायोस का कंप्यूटर मिल गया, ठीक है, और अगर क्लाइंट गलती कहता से। है कि, हाँ, क्लाइंट कहता है कि आप इसको अपलोड करो, अपडेट करो हम्म, फर्मवेयर को, है ना। डाउनलोड अपडेटेड फर्मवेयर, है ना। हम्म, अब आपको मदरबोर्ड का ध्यान रखना है ना, कि हम्म। आप मदरबोर्ड की कंपनी आपके पास होनी चाहिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है ना, वो कैसा एलजी मालूम का। पड़ता है ये मदरबोर्ड है ना कौन सी आपका, कंपनी की है नहीं जैसे है? इंटेल वो का काम, पीसी, इंटेल वो पूछ रहा हूँ मैं, जैसा आप यानी कि ये उसका प्रोसेस क्या है, कैसा है प्रोसेस उसको बोर्ड को अगर चेक अपडेट करने के करना लिए, है? मदरबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड को चेक करने के लिए या प्रोसेस को चेक करने के लिए? पूरा प्रोसेस पूछ रहा हूँ, अगर अपडेट करना है पूरा ठीक है, प्रोसेस। आ, पहले आप क्या करोगे कि आप मदरबोर्ड चेक करोगे। ओके। तो मदरबोर्ड वही कैसे चेक करते हैं, कि मतलब खोल के देखना या फिर पीसी को? बहुत सिंपल सा स्टेप है आपको, ये आपका वर्क 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 स्टेशन है विंडोज का, आप विंडो प्लस हम्म, आर करोगे,
और यहाँ पे टाइप करोगे MS Info ओके, मशीन 32, है ना। डेटा। MS Info 32 करोगे ना, तो ये आपको पोर्टल ओपन कर देगा। पहला है समरी, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है कंपोनेंट्स, चौथा है आपके पास सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। ओके। समरी के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। हमने जो मदरबोर्ड यूज किया है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी मदरबोर्ड से रिलेटेड है। ये मैन्युफैक्चरर है माइक्रो हाइफन स्टार इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है, ये हमारा बेस बोर्ड का वर्जन है। इसके कई सारे वर्जन आए हैं, तो हमारे पास जो ये है, ये आपका बायोस का वर्जन है, 3.3 अभी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर अब पहला स्टेप हो गया हमारा, अब माइक्रो स्टार इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, आप गूगल ओपन करो, यहाँ पे माइक्रो स्टार फॉर्मवेयर पे डाउनलोड कर पे क्लिक कर दो। ये MSI ही माइक्रो स्टार है, ठीक है। ये हम आ गए इस पे मॉडल पे, और ये इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज रखनी है अभी। बायोस वर्जन कौन कौन सा है, 3.3 और UEFI है। अब इस पेज पे आपको ना सर्च करना है। प्रोडक्ट नंबर डेस्कटॉप है हमारा, हम डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करेंगे। सीरीज कौन सी है, एक बार सीरीज का पता लगा लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ये सीरियल आईडी बोलकर होता है, देखिए हर पीसी का। हाँ, अपना खुद का सीरियल आईडी होता है। अब कोई इशू आया क्लाइंट के पास, प्रिंटर मेरे पास काम नहीं कर रहा, तो आपके पीसी का उसको रिमोट एक्सेस करना है, तो उसके लिए सीरियल आईडी लेना अपन, या सर रिमोट आरडीपी करना हो? नहीं, RDP कर लेते हैं बेसिकली। आरडीपी और टूल्स के बारे में भी मुझे थोड़ा जानना है, ठीक है, ठीक कंटेंट है, में रखा था मैं। कोई नहीं, कोई नहीं। MS7D23, दिस इज द मॉडल नंबर। ओके। MS7D23। मैं एक जो कॉन्ट्रैक्टिंग किया था स्कूल में, एक 1 वीक की जॉब थी, तो उसमें सिर्फ इमेज करना था, विंडोज 11 डालना था, यूएसबी बूटेबल डिवाइस। तो अच्छा। बायोस पे पूरे वहाँ पे एचपी के थे, लेनोवो के, डेल के थे, एचपी एंड डेल के थे, हम्म। पूरे पीसीस। तो वहाँ पर प्रॉब्लम जो है, बायोस वो जो बूट कराने में आ रहा था, जो बूट सीक्वेंस में आके, और इसमें बहुत इश्यूज आए थे वो टाइम पर। हम्म। इसलिए मैं पूछा कि कैसा इसको अपडेट करते हैं कि अगर। चलो, ये आ गया हमारा मॉडल नंबर। ये हमारा मॉडल नंबर के थ्रू हमने सर्च किया, हम्म। और ये बोर्ड हमारे कंप्यूटर में लगा है अभी, जो करंट टाइम पे चल रहा है, ठीक है। ओके। अब इस मॉडल नंबर पे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे, ये आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। ड्राइवर्स के लिए, बायोस के लिए, है ना, बायोस का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप बायोस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर्स की सारी यूटिलिटीज मिल जाएगी, जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं उन सबको हम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेज, जो लेटेस्ट बायोस है आपका, जो हम्म, लेटेस्ट बायोस है, उस बायोस को आप सिंपल सा डाउनलोड कर लो। लिस्ट दिखाई पड़ रही है, तो ये वाला लेटेस्ट है क्योंकि अभी रिलीज हुआ है सितंबर को 2024 को। ये आपका अगस्त में रिलीज हुआ था, अगस्त सितंबर, हाँ ये अगस्त में हुआ था। और ये आपका 2022 में था, ये 2023 में था, 2024 में यही वाला है, तो आप इसको डाउनलोड कर लो। आ गई तो फाइल, ये 8 MB की है। अब इस सेटअप को आपको रन कर देना है, सिंपल सा। ये ये जो टूल, ओके। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, रन कर देंगे। हमने अभी लेटेस्ट अपडेट किया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू रन एनीथिंग, ठीक है। हम्म, इसको ये रन करते ही मेथड, ऑटोमेटिक हो जाएगा पीछे वो। हाँ मशीन रीस्टार्ट होगी एक बार, और उसके बाद फिर आपका यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ओके। ओके, बस इतना ही है ये। बस सिंपल हो गया, ये मैनुअल ऑप्शंस हो गए। मैं समझा कुछ यूएसबी वगैरह लगा कर बायोस में सेटिंग्स में जाके कुछ करना है ऐसा। मशीन मैं मशीन सेटिंग्स चल, में बायोस में जाकर अपडेट करना है, समझ रहा हूँ। ना ना, ये आपका मैनुअल अपडेट है, ये मैनुअल प्रोसीजर है। अगर आपको लगता है कि बायोस में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, तो आप ये मैनुअल स्टेप यूज करो। ओके, अच्छा वहां से भी हम कर सकते हैं अपडेट बायोस से बायोस भी में अपडेट कर जाकर। सकते हैं, हाँ बायोस में भी एक ऑप्शन रहता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, उसमें आपका सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ। और यू कैन प्रोसीड विद नेक्स्ट 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 फिनिश। ओके, और क्लियर प्लीज। क्लियर क्लियर। ठीक है, ये सारी चीजें नोट्स करते जाओ, क्योंकि ये ना फिर कुछ भी पूछे आप डीप बताना उनको। सो ओके। ये हमारा पार्ट अभी कंप्लीट हुआ, कौन सा वाला, बायोस वाला। कोई क्वेश्चन बायोस में? ये वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग जो है, ये हम्म बूटिंग जो पीछे, जो जैसा ही हम प्रेस करते हैं स्टार्ट बटन, हम्म। दोनों को भी वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग बोलते नहीं भाई, जब आप हैं। मशीन को स्टार्ट करते हो जीरो से, मशीन आपकी बंद है, ओके, आप मशीन को स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल जीरो से, वो कोल्ड तो उस बूटिंग। केस में ये वो आपका कोल्ड बूटिंग कहलाएगा, क्योंकि मशीन को पूरा काम करना पड़ रहा है। हम्म, वार्म बूटिंग कब होगा, जब चलती हुई कंप्यूटर को आपने रिस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट किया, सॉरी। ओके तो वो वार्म बूटिंग में ऑटोमेटिक कंसीडर किया जाएगा, है ना। ओके ओके। एक और पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। बायोस के साथ साथ ना एक आपको और ऑप्शन मिलता है, वो है पोस्ट का। पोस्ट आइडिया है कुछ पोस्ट का? ये पोस्ट, ये भी एक बूटिंग ही है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट समथिंग कुछ हाँ जी, है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का कंसीडर किया जाता है इसमें। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है ये आपके सिस्टम में, राइट, आपके सिस्टम में है ना। जब भी यूजर मशीन को स्टार्ट करता है या लैपटॉप को स्टार्ट करता है ना, देन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कैन परफॉर्म वर्क, देयर टास्क, ठीक है, टू चेक all required components are working properly. Components are working fine, ठीक है ना। कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करता है ये? रैम को चेक करता है, एचडीडी को चेक करता है, मदरबोर्ड को चेक करता है, एसएमपीएस या पावर सप्लाई को चेक करता है, सीपीयू को चेक करता है, नॉर्थ साउथ ब्रिज को चेक करता है, और साथ ही साथ ये आपके अदर
मदरबोर्ड कंपोनेंट को चेक करेगा। ठीक है, Okay. अगर ये सभी ऑल कंपोनेंट्स आर वर्किंग फाइन, देन आपका कंप्यूटर जो है स्मूथ तरीके से रन करना स्टार्ट कर देगा। ऑल राइट प्लीज। Okay. तब आपका सिस्टम जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई, मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही है ना, Hmm. ये आपको एरर दे देगा कि योर हार्ड डिस्क इज नॉट कनेक्टेड, प्लीज चेक योर हार्ड डिस्क एंड ट्राई अगेन। प्लीज चेक योर हार्ड डिस्क एंड ट्राई अगेन, वो क्या कहेगा कि आप अपनी हार्ड डिस्क को चेक करो और फिर से ट्राई करो। तो पोस्ट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पोस्ट क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ऑल राइट प्लीज। Okay. Okay. ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का, और ये भी बूटिंग का पार्ट ही है। जो बूटिंग Mhm. प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी का पार्ट है। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बारी आती है अगले पार्ट की, जो कि है MBR, फिर है एक्टिव पार्टीशन, और फिर है BCD, बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा, है ना। 3 चीजें अभी और रिमेनिंग बची हैं। Okay. जितना डीप आप जाओगे ना, उतना अच्छे से आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। Okay. अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? फर्स्ट जो है बायोस में पोस्ट होता है, फिर उसके सेकंड हम्म। MBR पे जाता है फिर बस। बायोस खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है ना, बायोस के अंदर हम्म, खुद बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने देखा कई हाँ सारी चीजें आती है। ठीक जो पार्ट हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? है। नहीं। ठीक है यहाँ तक?